बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम फ़िकी, शजर अब्बास और हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी आज मेहमान ख़ास मुनफरिद अंदाज़, आँखों में दुनिया फ़तह करने के ख्वाब, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में ताज़ा हवा का झोंका करार दी जाने वाली अदाकारा ज़ोया खान। नाज़रीन, ज़ोया की साथ तो बातें भी होंगी, लेकिन नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम जो कि कभी सोने की बालियां कहलाती थी, आज मिट्टी की नालियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। गंदम की कीमत पिछले 2-3 बरसों से इतनी तेज़ी से गिर रही है कि इतनी तेज़ी से एसी चलाएं तो बिजली के यूनिट नहीं गिरते। नाज़रीन, इस सूरत हाल में किसान की हालत ज़ाहिर दिखाने के लिए आपको पहले लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की जानिब। चौधरी साहब मुबारक होवे, कणक गई घर आ तो घर ही आई है ना, किधर वेकण भी तो जाए ना। की मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਕਰੋਲਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਦਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਰੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਕਣਕ, ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 2 ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ ਰੋਲਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾਇਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆੜਤੀ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਰੇ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਵੇਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਵਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਗਈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤੇਰੀ ਗਈ। चौधरी साहब आप ऐसे ही परेशान है, गवर्नमेंट आपकी कनक खरीदेगी। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਮ ਵੇਚੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਚਿਪਸ ਕਰਾਰੀ ਦਾਲ ਏ ਗੰਦਮ ਏ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋ। ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਰਬਾ नहीं इस्तेमाल किया हो भाई। मेरा मशवरा माने, आप यहाँ पे तंदूर लगा दें, लोगों को रोटियां बना बना बेचे। मैं पहले भी तंदूर लाया, हुण फिर तंदूर ला लवां। ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਏ ਹੁਣ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੰਦਮ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਕੜੀਓ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਵੇਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਗੰਦਮ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੋਲਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆੜਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਈ। लेकिन हुकूमत आपसे जुबान करती है कि गंदम आपकी बिकेगी। फिलहाल जुबान करती है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਣਕ ਆ ਪਈ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈ। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਚੁਦਰਾਣੀ ਦੇ ਕੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੈਸੀਆਂ ਉਪਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰਾਣੀ ਦੇ ਕੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰਾਣੀ ਦੇ ਕੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। चौधरी जी, आपकी कनक को देखा है, मैं वादा कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कनक खरीदेगी। कदों खरीदेगी? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਕਰੋਲਾ। ਹਾਂ, ਚੌਧਰਾਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਖੋਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਲੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਂਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਉਮਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਫੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੋ ਨਾ, 5 ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਸਾਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? जय साहब एक बात याद रखें, अरस्तु ये कह के गया था इस दुनिया से कि प्यार और प्याज की कीमत कभी नहीं गिरती। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਕਣਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਬੀਜ ਲਓ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪਈ ਉਗਣ ਦੀ, ਕਣਕ ਹੀ ਉਗੀ ਉਥੋਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਏ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਕੀ ਇਸੇ ਕਣਕ ਨੇ ਨਾ ਜੰਨਤ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਵੀਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ। ਹੈਲੋ ਲੱਗੀ ਜੇ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਚੁਧਰਾਣੀ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਐ ਤੇ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪ ਪਿਓ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢਿਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਏਗੀ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸਤਕਿਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋ 5000 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੇ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੈਠੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋੜੀ ਜਾਣ ਡਈ। ਉੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੰਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਫੰਬਾ ਲਾਇਆ ਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਿੱਛਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਫੰਬਾ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ? ओ भाई जब गवर्नमेंट खरीद लेगी ना, अच्छा बाद में इसका रेट उता ही जाएगा। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਜਾਂ ਟਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਣਕ ਆ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਣਕ ਆ ਪਈ। वैसे मजे की बात बताऊं, एक बारात पे वो बुजुर्ग नहीं होते जो ऐसे पैसे फेंकते हैं पीछे, हाँ जी। वो कणक फेंक रहा था, बच्चों ने उठाई ही नहीं। उनके घरों में इतनी बड़ी हुई है। मैं तो आप अपने दरवाजे के खलो के क्या कुड़ियो बालो कणक वंडी दी लई जाओ। फिर कोई लेने आया? कोई नहीं आया, बाल भी यही कह रहे थे, चौधरी बालो कणक वंडी दी लई जाओ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਵਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਘੱਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਨਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਐਟਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਗੱਡੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੂਏ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਕਰੋਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 3-4 ਸੂਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਭਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਭਵੇਂ ਜੀਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ओ बाजी मेरे वाली तो 2 झूठे ला ला, कणक ते अजे लेट बिकनी है। भाई ये कनक बिकती है ही नहीं बिकती, मेरी शादी कराओ, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे।
ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਬਾਜੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵਿਕੇਗੀ। ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਂਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਸੱਟੋ ਜਾਂ ਵੇਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਕਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਣਕ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਕਰੋਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਧਰਾਣੀ ਹੈ, ਓਏ ਮੰਦੇ ਓਏ, ਇਹ ਪਾ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਟਕਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ? नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जोया, ये बताएं कि आपको क्या कहा जाए तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, ज़्यादा उसमें आप प्राइड लेती हैं, खुशी महसूस करती हैं कि आप एक्ट्रेस हैं, आप मॉडल हैं, आप सिंगर हैं, आप शायरा भी हैं, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं और मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। मल्टी टैलेंटेड है और लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स भी हैं। तो किस एक शोबे में कहा जाए कि आप ये मुझे सबसे अच्छा लगता है? आई थिंक मॉडलिंग। मॉडलिंग में? अच्छा, मॉडलिंग, क्योंकि स्टार्ट मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा। लाइक शो से, रैम्प वॉक से, देन मॉडलिंग, देन ब्रांड शूट्स, देन मैगजीन शूट, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, फिर आपको काम करने का मौका मिला ब्लाइंड लव में हिना दिलपजीर साहिबा जैसी मंजी हुई अदाकारा के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, ये बताएं। लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो इंसान भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा। लाइक उन्होंने काफी हेल्प की, लाइक जैसे ब्रेक्स होते थे, देन उसके बाद लाइक डाउन टू अर्थ पर्सन है वो। लाइक मुझे नहीं था, मुझे था कि लाइक आपको क्या पसंद है, लाइक मैं ये पूछा कि लाइक आपको और क्या अच्छा लगा उस ये मेरी बहुत बुरी आदत लाइक है। काम करते हुए? इनको ये अच्छा लगा कि हिना दिलपजीर ने ना अचानक ये नहीं कहा लाइक है। तो लाइक आपका तकिया कलाम है। जी, मैं हर चीज में कहती हूँ। आज के बाद आपकी पहचान बन जाएगी। बहुत उन्होंने रिपीट कर दी है। मेरे दोस्त भी इस चीज का बड़ा मजाक उड़ाते हैं, बट मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, आपने इतना लाइक किया है, मैंने लगन लग पे मैं लाइक हूं। आप भी सीख जाएंगे। थैंक यू। बेटा तुम भी बार बार कहना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, तो बेसिकली आपका ताल्लुक कराची से है, जी। तो फिर आप लाहौर आ गई। ये जो लाहौर से मोहब्बत थी, ये किसी और से मोहब्बत थी? शायर साहब, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना अच्छा। चाहूंगी। इसके अलावा किस शहर को लाइक कर दी? अच्छा जोया, आपने फिल्म भी की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपकी फिल्म रिलीज हो गई है? नहीं, अभी तक रिलीज नहीं हुई। आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह फिल्म काफी टाइम पहले बन जाती है, बट वो रिलीज होते होते आई थिंक उतना टाइम गुजर जाता है। इनका नाम क्या है? कुल्फी। तो जाहिर है कुल्फी फिर सर्दियों में तो नहीं ना लगनी, वो तो फिर गर्मियों में लगेगी। सर उदों तक खुर भी तो जानी ना। हाँ। नहीं, पाकिस्तान की फिल्म इस तरह ही होती है, जिन्हें सवाल किया ओदी भी बनी पई। अच्छा जोया, आपने ड्रामे में भी काम किया, आपने फिल्म में भी काम किया, आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आया, फिल्म में या ड्रामे में? आई थिंक दोनों की लाइफ अलग अलग है। फिल्म थोड़ी बड़ी कास्ट होती है और प्रोडक्शन बड़ा होता है, और ड्रामा थोड़ा आई थिंक, तो इसलिए आई थिंक फिल्म में मुझे एज कम्पेयर टू ड्रामा मजा आया। अच्छा, सोशल मीडिया पे किस प्लेटफॉर्म को ज्यादा एंजॉय किया आपने? आई थिंक इंस्टाग्राम। अच्छा। आई लव इंस्टाग्राम। मोस्टली मैं उस पर ही ज़्यादा एक्टिव होती हूँ अपने फैंस के साथ, और फिर उसके बाद स्नैपचैट, फेसबुक तो नहीं यूज़ करती इतना। अच्छा, आपका शायरी के साथ भी लगाव है? जी। तो बाकायदा शायरी करती हैं ऐसी दिल लगी के लिए? वैसे ही कभी कभार दिल करता है, आंखें बंद करती हूँ, फील करती हूँ, और वो फिर लिख देती हूँ। अच्छा, सुनाएं कुछ। ये तो बिल्कुल आपका गालब वाला स्टाइल है। वो भी आंखें बंद करके, जब उनको कोई सोए हुए कोई शेर की आमद होती थी ना, तो वो गिरा बांध लेते थे। जब सुबह उठ के गिरा खोलते थे, उनको वही शेर याद आता था जो रात को ख्वाब में कहा होता था। ये आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, इसीलिए तो गालिब ने कहा था कि हाथों से दी हुई गिरे दांतों से खोलना पड़ती हैं। गालिब जोया, आप हमें अपनी गालिब क्या कि सच्चे हुए ने गालिब।
जो आपने लिखा है आप हमें वो सुनाएं। क्यों तेरा ख्याल ये मेरे दिल से जाता नहीं, वाह क्यों तेरा ख्याल ये मेरे दिल से जाता नहीं, जाता नहीं। क्यों लिखते लिखते अक्सर मैं सोच में गुम सी हो जाती हूँ, आहा, क्यों हर ख्याल में हर अक्स में मेरे हर वो एहसास में क्यों है तू अब बसासा हुआ, आहा, बसासा हुआ। तू आदत है या ज़रूरत है या सुकून का वो पहला एहसास, आहा, जैसे तपती हुई धूप में शजर के आगोश में आ जाने का सुकून, शजर की आगोश में आ जाने का। जैसे या किसी शजर- प्यासे ओ, को- वाह वाह करो इस सर मैं पे। सदके कह रहे हैं तुसी वाह वाह कह रहे जैसे किसी प्यासे को पानी की एक बूंद का सुकून, वाह वाह वो सुकून है तो क्यों ऐसा सुकून है तो, वाह कमबख्त दिल अब कहाँ मेरी सुनता है, कमबख्त दिल अब कहाँ मेरी सुनता है, क्यों अक्लो शऊर पे मेरे पर्दा सा पड़ गया है, वाह 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 माना कि तुम हमारी किस्मत की लकीरों का हिस्सा नहीं, भाई वाह माना कि तुम हमारी किस्मत की लकीरों का हिस्सा नहीं, क्या पता हम तुम्हारी किस्मत की लकीरों में जा बसे हों पहले ही, ओए होए क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं। वाह 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 वाह। बहुत सही बहुत सही। अच्छा, इतना कुछ आप करती माशाल्लाह, शायरा भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, सोशल मीडिया भी देखती हैं, गाती भी हैं? नहीं गाती नहीं हूँ, अब इतनी नहीं हूँ मैं कि मैं गा भी लूँ, बहुत सुरीली आवाज़ बिल्कुल नहीं है। नहीं अकेले में तो गाती होंगी, ये बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है। जोया हमने आपके शेर भी तो बर्दाश्त कर ही लिए हैं, अब आप हमें गाना भी यार सुना इतनी दें। बुरी शायरी की थी मैंने। नहीं वो आपकी गाने के शायरी हिसाब मैं से एक कर रहे शर्त पे गाऊंगी अगर आप सारे मेरे साथ गुनगुनाएंगे तो। नहीं, हम सारे तो नहीं गुनगुनाएंगे, विकी साहब गुनगुनाएंगे, इनको हमने एज गुनगुना भी रखा हुआ है। और मैं गुनगुना होके बैठा रहता हूँ। और ये खाली गुनगुनाएंगे नहीं नचाएंगे भी। चलो तू शुरू कर, तू तो सिंगर है कहाँ? हो मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, हो तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? यार उन्होंने गाना शुरू किया, आपने आहिस्ता आहिस्ता साइलेंट पे लगाना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बचा रही थी ना। ये क्या बात है। तो यार आपने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, स्पेशली आई थिंक अगर बात की जाए ब्रांड्स की उसे, और वो बजट भी अच्छा देते हैं हाँ। और आपको फेम भी ज़्यादा मिलता है, स्पेशली बिलबोर्ड कैंपेन से आपको बड़ा मिलता है। और एक ब्रांड के ऊपर आप लाइक अगर आप काम करें, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, तो दूसरा जो कॉम्पिटिटर ब्रांड होता है फिर वो भी आपको लेता है। अच्छा। तो ये चीज़ का बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हैं, मसलन आपने काम किया है सर्फ के साथ, तो वो सर्फ का एक डब्बा साथ फ्री देते हैं? ऐसा तो अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं। फिर की फायदा। फिर उन्होंने बताया है कि पैसे बहुत बड़े देते हैं। पैसे अपनी जगह है, लेकिन जो फ्री चूंगा मिलता है उसके अपना वो मजा है। इन्फ्लुएंसर को देते हैं, इंस्टाग्राम मेरे पे भरा दा भी दे। इन्फ्लुएंसर को देते हैं, क्योंकि वो फिर एक उसका अलग चार्जेस होते हैं, वो फिर इंस्टाग्राम पे लाइक या तो आपको प्रोडक्ट आपको फ्री में देते हैं। नहीं सर, आप हमें बताएं, आपने कभी हमें गोरमे का डिब्बा बिस्किट का साथ दिया है? तो आपकी फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन सी है? सबा कमर। हाँ, और आई जस्ट लव हर, लाइक उनकी एक्टिंग, आई थिंक जो भी उन्होंने ड्रामे की एक से बढ़कर एक है, और वो ऐसा लगता है कि सच में आप लाइक यू नो रियल देख रहे हैं। बहुत टैलेंटेड, बहुत Yes, she टैलेंटेड। is. तो अगर फिल्म करने का चांस मिले दोबारा आपको कोई अच्छी, तो किस हीरो के साथ आप एज हीरोइन अपने आप को देखती हैं? नुमान एजाज हाँ, और फाद मुस्तफा दोनों। अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। हाँ, हम रेडी हो जाएं? अब मजा आएगा ना बीडू। ये आई एम रेडी। हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, आपने एक सिलेक्ट करनी है। ओके। अगर शूटिंग के दौरान अचानक चूहा आ जाए तो इनमें से क्या करेंगी? ऑप्शन नंबर 1 नजरअंदाज करेंगी, ऑप्शन नंबर 2 चूहा आ जाए और खातून नजरअंदाज कर दे, शाबाश। और वो भी अगर मोटा तगड़ा चूहा हुआ तो बिल्कुल नहीं। नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ऑप्शन 2 क्या? ऑप्शन नंबर 2 चूहे को सीन का हिस्सा बना देंगी, दैट इज इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डिस्गस्टिंग है। ऑप्शन नंबर 3 डर के पीछे हट जाएंगी, ऑप्शन नंबर 4 आंखें बंद कर लेंगी। डरूंगी तो नहीं, वैसे साइड में हो जाऊंगी, साइड पे हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखूंगी कहीं मेरे आसपास भी ना गुजरे। हाँ, मेरा जोया मैम से क्वेश्चन है, अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो अगर आपको पंजाबी में स्क्रिप्ट आ जाए तो आप क्या करेंगी?
यार आई थिंक किसी चीज़ को भी मना तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, बट कोशिश करना चाहूँगी, सीखूंगी, देन उसके बाद बिल्कुल हर चीज़ सीखने से ही आती है। सो डेफिनेटली चले इसको आप पंजाबी में ट्रांसलेट करें कि ये 2 टके की औरत जिसका तुम 5 करोड़ लगा रहे थे। इतनी पंजाबी नहीं आती मुझे, आती नहीं है यार, ये तो चले पता है ना। 1 टके की कर लें। तो आप मुझे पहले ट्रांसलेट करके तो बताएं कैसे बोलना है। ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। दे रहा सी 50 मिलियन 50 मिलियन 50 मिलियन क्या होता है? 50 मिलियन दे रहा सी। 50 हाँ ओके 50 मिलियन 50 ये आप कभी भी नहीं कह सकती। चल 50 कह दो, 50 मिलियन दे रहे थे। 50 मिलियन दे रहे थे। मैंने रोटी खुआता मैं वैसे मान जाना सी। तो ऐसा कौन सा करेक्टर है जो अभी तक आपको नहीं मिला और आप करना चाहती हैं? आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर, फुल लड़ाका टाइप, फुल के हर जगह जाके लड़ाई करे, चूहे नु वेख के पीछे हट गए। हर जगह जाके लड़ाई करे। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚੂਹੇ ਦੀ। मैडम जी मैंने मॉडलिंग ते एक्टिंग का शौक आ। ज्यादा किसका शौक है, लाइक मॉडलिंग का या एक्टिंग का? एक्टिंग भी कर लेता हूँ, मॉडलिंग मिक्स ही कर लेता ऐसे इतने करके दिखाओ फिर। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। हूँ। मिस मैं वॉक भी कर लेता हूँ। पहले वॉक करके दिखाएंगे, वॉक के साथ साथ आप करेंगे एक्टिंग, ठीक है? अब आपको ये चैलेंज है कि आपने वॉक करनी है, वॉक के साथ साथ एक्टिंग करके दिखानी है। सर जी एक कैट वॉक वही है ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦੀਆਂ ऐं करके लगा ये तो लगता पानी की मच्छी पागल हो गई। मिस शायद देखना मॉडल को पोलियो अच्छा मॉडल घट ते बारिश वाली 4 बजे ज्यादा लग रहे। चलो आप एक्टिंग करके दिखाओ, जल्दी से एक्टिंग करके दिखाओ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਚੜਿੰਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। यार एक्टिंग कर रही है, जुड़ते नहीं करनी। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। इंडिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तुम आए तो खुशबू सी बिखरने लगी, ਬਹੁਤ तुम आए तो खुशबू सी बिखरने लगी, ये महफिल भी जैसे निखरने लगी। सर अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारी महफिल का निखार। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद बजीर है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो मैं एक अरबी सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। अरबी सॉन्ग? जी, जो कि शायरी भी मेरी अपनी है। अच्छा, आप कहीं अरब मुल्क में रहे हुए हैं? नहीं, मैंने अरब उनका जो है ना वो कल्चर देखा हुआ है। अच्छा, कल्चर देखा हो। तो कल्चर देख के आप जबान सीख गए? नहीं, उन पे शायरी की मैंने। अच्छा, उन पे शायरी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाए जी। मुल्तान दी धुप च फिर के उन्होंने अरब समझ लिया। कितना खूबसूरत तेरा अरबी लिबास है, माशा अल्लाह तू सबसे खास है। आंखों में सादगी है, चेहरे पे ताजगी है, चंदा को भी तुझसे थोड़ी नाराजगी है। वाह जी वाह। कितना खूबसूरत तेरा अरबी लिबास है, माशा अल्लाह तू सबसे खास है। अच्छा, ये अरबी खातून के लिए आपने गाना लिखा है? जी जी। तो ये अरबी लिबास में तो आंखें भी नजर नहीं आती खातून की। सर ये लिबास के ऊपर और उसकी सादगी के ऊपर है। अच्छा वाह जी वाह। शुक्र है आंखें नजर नहीं आती। आंखें नजर आ गई ना तो आपका गाना बंद हो जाएगा। और वैसे भी ये मैंने अपनी जिंदगी में पहला अरबी गाना सुना है जिसमें हबीबी हैया हैया नहीं आया। मेरा जुनैद साहब से क्वेश्चन है कि आप सियासी मसले पे काफ़ी निशानदेही करते हैं, कि ये बताएं कि सबसे बड़ा माशरती मसला क्या है? अच्छा देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं, जो हमारा सबसे बड़ा माशरती मसला है ना, वही हमारा सबसे बड़ा सियासी मसला भी है, वही हमारा सबसे बड़ा समाजी मसला भी है, वही हमारा सबसे बड़ा मुआशी मसला भी है। और वो क्या है? वो है रिज़्क़ हलाल की तकसीम ख़त्म हो जाना, रिज़्क़ हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाना। हमारे माशरे में रिज़्क़ हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले का एहतराम नहीं रहा।
उसको जो रिज़्क़ हलाल कमाता है उसको हम बुज़दिल कहते हैं। आप देख लें अपने गली मोहल्लों में हमारे जो बाप दादा सिखाते थे हमें, आज हम वो अपनी अगली नस्ल को नहीं सिखा रहे। हम उनके आइडियल्स किनको बना रहे हैं? जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये नहीं देखते कि उसने कैसे कमाया है। हमारे बाप दादा जो थे, जब हमें मोहल्ले में, शहर में उन लोगों की इज्जत थी जिन लोगों ने रिज़्क़ हलाल से पैसा कमाया होता था। अगर किसी की शोहरत बदमुआश की होती थी ना, बदमुआश यानी जिसने बद तरीके से मुआश कमाया होता था, उसकी इज्जत नहीं होती थी। खौफ जरूर होता था, उसकी इज्जत नहीं होती थी। हमने रिज़्क़ हलाल कमाने वालों की इज्जत करना छोड़ दी। आज पूरे शहर में देख लें, माशरे में देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, आप हर जगह देख लें, रिज़्क़ हलाल कमाने वालों को हम बुज़दिल कहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। तो इज्जत ही तो उस बेचारे, एक ईमानदार जज रिटायर हुआ है, उसके जो रहने के लिए अपना घर नहीं बना पाता, वो कहते हैं छड़ ये बुज़दिल बंदा सी। वो बुज़दिल नहीं था, वो ईमानदार था भाई। क्या बात, वो सबसे दलेर था, वो सबसे बहादुर जज था, जबरदस्त। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है ना रिज़्क़ हलाल में, इस हवाले से मेरा ख्याल है वो ख़वातीन खाना का होता है, बीवी का होता है। पहले बीवियां पूछती थी कि तुम्हारी तनख्वाह 1600 रुपए है, तो ये कंगन कहाँ से लेके आए हो? आज कहते हैं तनख्वाह तुम्हारी भाड़ में जाए, कंगन लेके आओ। तो सबसे ज्यादा जो हमने प्रमोट किया है ना रिज़्क़ हराम को, उसमें हमारे घर में जो निज़ाम ख़त्म हो गया ना एहतसाब का, वो नहीं। पहले पूछा जाता था, हमारी माएँ पूछती थी, हमारी बुजुर्ग ख़वातीन पूछती थी, शौहरों से पूछती थी, बाप से बेटियां पूछ लेती थी, अब्बा तेरी तनख्वाह तो इतनी है, स्कूल टीचर हो तुम, ये कहाँ से लेके आए हो? यही है, जब एहतसाब ही नहीं है तो फिर सत्ते ही खैर है। ये नहुसत है, बहुत खूब। रिज़्क़ हराम की एक नहुसत होती है जो पूरे माशरे पे गालिब आ जाती है, छा जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। जी, मेरा क्वेश्चन विकी साहब आपसे है कि आप ये बताएं कि फिल्म, टीवी और थिएटर की जो कॉमेडी है इसमें क्या फ़र्क है, और साथ में ये भी बताइएगा कि आजकल जो थिएटर के अंदर जो कॉमेडी का म्यार है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि हम मुतमईन नहीं है उस कॉमेडी से, क्योंकि वो बिल्कुल बेरारवी वाली कॉमेडी हो गई है। फिल्म की कॉमेडी, थिएटर की और टीवी की और आम जो कॉमेडी होती है उसमें फ़र्क होता है। अच्छा, जो फिल्म की कॉमेडी होती है ना जी, उसके अंदर ये होता है कि आपने सिचुएशन में हंसाना है। जिस तरह गोरा लाफ्टर लेने के लिए एक बिल्डिंग से गिरता है, तारों में लगता है, फिर छप्पड़ पे लगता है, फिर नीचे आता है, फिर एक औरत जा रही है, उसके अंडे गिर जाते हैं, फिर लाफ्टर आता है। तो वो एक लाफ्टर के लिए कितना अरेंज करता है। फिल्म के अंदर, हमारी जो पंजाबी फिल्म होती है उसके अंदर एक छोटी पंच लाइन होती है या सिचुएशन होती है, एक सीन के अंदर आपने 2 लाफ्टर लेने हैं। थिएटर के अंदर आपने कॉन्टिन्यूसली लाफ्टर लेने हैं, आपने हंसाते जाना है। टीवी के अंदर आपने सिर्फ मजाक करना है, क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर आप बड़ा लाफ्टर नहीं दे सकते, आपने सिर्फ स्माइल देनी होती है ना। ड्राइंग रूम के अंदर वैसे भी आप बीवी की मौजूदगी में बड़ा लाफ्टर नहीं दे सकते। अब बंदा बीवी के सामने ऊंची हस भी पवे ना, काहदे हसे चढ़े ने की करता नहीं एडा है, बड़ियां खुशियां चढ़ियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। जो थिएटर की कॉमेडी है इसमें जरा थोड़ा सा ये हो कि थिएटर की ज्यादती की वजह से कि हर जगह पे थिएटर हो गया, एक्टर है नहीं है। अब जो बंदा मतलब डिजर्व नहीं करता, अब वो थिएटर पे आ गया है, तो वो उसके मुंह में जो भी आ रहा है बगैर स्क्रिप्ट के कर रहे हैं। बगैर स्क्रिप्ट के जब आप कोई भी बात करेंगे वो गालियां हो सकती हैं, जुगते नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड की कॉमेडी नहीं रही। बहुत सही। तो चलते हैं सुहाना का सवाल अपनी ऑडियंस से, जिसके जवाब पे मिलेगा आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सा बर्तन है जिसके आखिरी 2 हरूफ मिटा दिए जाएं तो खाने वाली चीज बन जाती है? कौन सा बर्तन है जी आखिरी 2 हरफ मिटा दिए जाए तो खाने वाली चीज बन जाती है? अच्छा, और बहुत ही आसान है जी। पतीली। पतीली? पे ते ये लाम ये, तो लाम ये काट देना तो पत्ती खाने वाली तो नहीं होती ना, बनाने वाली है, उससे चाय बनती है। चले मैं आपको हिंट दे देती हूँ, पतीली से मिलती जुलती चीज है। पतीली से मिलती जुलती चीज है जी। मैं बताऊं? जी बताएं। कड़ाही, कड़ी। ये और ये नहीं तो कड़ा बन जाएगा ना, कड़ा तो कुछ नहीं होता। कड़ा तो कड़ाही नहीं। और जी इतना आसान सवाल, कोई और हिंट दें? कितने हिंट चाहिए? सारा कुछ तो बता दिए सर। आपका इनाम तो आज नहीं बचने वाला। एक और हिंट, मीठी होती है।
खाने की चीज मीठी होती खाने है। की चीज मीठी होती है चलें जी। अब मीठी चीजें खाने की लें, चीनी, या अल्लाह खैर, खीर, कुछ नहीं 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 नहीं, आज अल्लाह ताला मेरा इनाम बताएगा। चलें जी बताएं। इसका जवाब है गड़वी। उसके 2 हर्फ मिटा दीजिए तो गुड़ बनता है। हाँ इस गिफ्ट हैम्पर के लिए हमारे साथ ताउन किया था कयास ने। चलें जी, यही इनाम जो पहेली में आप लोग नाकाम रहे हैं, हाँ। गेम के बाद फाते को दे दिया जाए। दे दिया जाएगा। चलें जी, गेम क्या है? गेम ये है कि किसी जानवर की आवाज निकालने का मुकाबला जो सबसे अच्छे लोग आ जाए जी मैदान में, जो किसी भी जानवर की अच्छी आवाज निकाल सकते अच्छी हैं। आवाज, डिजाइनर गिफ्ट हैम्पर उसका हुआ। आ जाए जी, एक आप आ जाए। आप पहले आप बता दें पहले किसकी आवाज निकालनी है, फिर वो आवाज निकाल दें जल्दी से। मैं कैट की आवाज निकालूंगी। चलें निकालें। म्याऊ। नहीं, ये तो आप कह रहे कि मैं आऊं। मैं हूं। मैं भी बिल्ली की आवाज ही निकालूंगी। अच्छा जी, आप कहें मैं जान जाऊं, है बिल्ली की आप आवाज। कहें मैं जाऊं। थोड़ी सी ये बेहतर अच्छा है। है। बेहतर है। बिल्ली गमज़दा हो तो ऐसे बोलती है। मैं भी बिल्ली की आवाज ही। बिल्ली बिल्ली। हाँ, ये बेहतर है, इम्प्रूव हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं बिल्ली की आवाज बिल्ली की आवाज निकालेगी। बिल्ली म्याऊ। ये कौन सी है? एक की आवाज निकालनी है, 2 अलाउड है। आपके पास जितने भी चल हैं। 2 की निकाल दें, 2। मैं पहले मुर्गे की निकालूंगा जी। मुर्गे की? जी चले। जबरदस्त। दूसरी वाह। इसका आपको मतलब दूसरी से मैंने डॉग की निकालनी है। क्या आपको अच्छा, वो भी प्रैक्टिस है? चले निकाले। आपको मैं सिलाई के ये आपने मुर्गे की आवाज को डराने के लिए कुत्ते की आवाज निकाली। तो जी दोनों आवाजें बहुत परफेक्ट थी आपकी। मेरा ख्याल है विक्की साहब से राय लेने की भी जरूरत महसूस नहीं की। नहीं जी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको सूट भी दिया जाए और साथ सिलाई के पैसे भी दिए जाए। सूट सिला हुआ है। इस गिफ्ट हैम्पर के लिए हमारे साथ ताउन किया है कयास ने। ये एक ऐसा इदारा है जहां डिजाइनर्स अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लाइंट्स को एक ही छत के नीचे तमाम मारूफ ब्रांड्स मिल सकते हैं। वाह, जबरदस्त। दुनिया का पहला मुर्गा है जिसने मांगा दाना था और उसको मिला गिफ्ट हैम्पर। सर आप पाओगे? ये आपके साइज का नहीं, वरना आपको दे देता। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिल के कितने छोटे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपने शॉर्ट स्किट में, जहाँ एक खातून एक डेकोरेटर को बुला के उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आने में इतनी देर क्यों कर दी है? मैम आधे घंटे से बेल्स कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं, क्यों फोन कर रहे थे आप? मैडम आपका कुत्ता खुला हुआ था, मैं अंदर आ ही नहीं सकता था। अभी 20 रुपए के बिस्कुट लेके उसको डाल के आया हूँ जी, फिर अंदर आने दिया उसने मुझे। अरे भाई, हमारा तो कुत्ता ही नहीं है। फिर मैं 20 रुपए के बिस्कुट किसको डाल आया हूँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे कुत्ते के पड़े हैं, तुम खा लो। आप तो कह रही हैं आपका कुत्ता ही नहीं है। उसके बिस्किट तो है ना जी, लोगों ने कुत्ता रखे नहीं तो बिस्कुट रखे हैं। मैम आपने अपने डेकोर के लिए मुझे बुलाया था। हाँ, उसी के लिए बुलाया था। और तुम मेरे मामा के बेटे हो। मैं आपके मामे का बेटा लगता हूँ जी? हाँ, मेरे मामू नशा करते हैं ना। मैं नशे का बच्चा लग रहा हूँ। मैम इस पाकिस्तान में कौन नहीं मुझे जानता। जब पाकिस्तान नया नया बना था, सबसे पहले डिकोर मेरे अब्बा जी ने की थी। आपने वो बंदा देखा है जो लाइटों का बना के दीवार पे लगाया होता है, यूं ही कर रहा होता है? वो आपके अब्बू थे? वो मेरे अब्बू ने बनाया था। अरे वाह, फिर तो इसका मतलब है आप बड़े फेमस लोग। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बंदा है जिसने मुझसे फंक्शन नहीं करवाए और कहता हो कि हमें नहीं जानता? अगर वो नहीं जानता होगा तो मैं थप्पड़ खाऊंगा। एक थप्पड़ तो आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। अब्बा जी, आपके साथ कल से बात शुरू हुई। नालायक। जी मैम, किस किस्म की डेकोरेशन करवाना चाहती हैं आप? देखो, मेरी दोस्त है महम। अच्छा। उसने अपनी बर्थडे पे 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया था और इतना खूबसूरत डिकोर करवाया था। मैं चाह रही हूँ कि मैं भी इतने ही पैसे लगाऊं। मैम किस किस्म का डेकोरेट करवाना चाह रहे हैं? पहले आप मुझे बताएं, आप कुछ खाएंगे? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मैडम लेके तकल्लुफ ना नहीं, करें प्लीज मैं आपके मैडम। लिए कुछ खाने के लिए लेके। ओहो मैम, आप तो तकल्लुफात में पड़ गई हैं। आप खाएंगे?
मैम आपने तो तकल्लुफ ही किया है। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मेरी फ्रेंड है माहम। अच्छा जी। ऐसे चिपटी रोटी जैसा उसका मुंह है। वाह। 2.5 करोड़ की उसने करवाई डेकोरेशन। सिर्फ 2.5 करोड़ की। और सबको दिखा दिखा के पूछ रही थी, बताओ 2.5 करोड़ लगाया है मैंने, नजर भी आ रहा है। मैंने कहा 2.5 रुपए मुंह पे भी लगा लेती ना तो देखने लायक। मैम उन्होंने तो 2.5 करोड़ में किया है ना। हाँ। मैम हम तो इतने से पैसों में इतनी बड़ी डेकोरेशन कर देंगे कि आपको मजा आ रहा होगा ना पिज़्ज़े का। हाँ, इट्स रियली डिलीशियस। अच्छा, नाइस नाइस। इतने से पैसों में नहीं करवानी मुझे डेकोरेशन। मैम मैं आपकी 2 करोड़ में करूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैम ऐसा डिकोर करूंगा कि लोग बाहर से आके मुझे कहेंगे कि ये बारबेक्यू है ना, है ना। अच्छा मैम, मुझे ऐसी ही डेकोरेशन चाहिए। मैम जो भी आपका घर देखेगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा जी। मैम इसके चारों तरफ थोड़ी सी बोटियां और लग जाती। लाइट्स लगी होंगी, एंजॉय करेंगे। मैम मेहमान आएंगे और आके कहेंगे कि इसके साथ केचप होती बहुत मजा आना था। क्या मतलब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैम आपको पता है डांसिंग फ्लोर कैसा बनेगा? कैसा? ओह माय गॉड, आपकी सोच होगी मैम, जब बच्चे वहां डांस करेंगे तो उनके हाथ पिज़्ज़े से लिबड़े होंगे। पिज़्ज़े से? पागल हो, मैं तो बारबेक्यू करूंगी ना। तो ये फजीता था। चलिए फिर बताएं, इस घर को डेकोरेट करना। मैम ऐसा डेकोरेशन कर दूंगा कि पाकिस्तान में ऐसी डेकोरेशन कभी किसी ने नहीं की होगी। अच्छा। आपको पता है पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी डेकोरेशन मैं ही करता हूँ। डेकोरेट के लिए वो सिर्फ मुझे ही कॉल करते हैं। शेख रशीद को जानती हैं? हाँ, उसको कौन नहीं जानता। उनके बेटे की बर्थडे की सारी डेकोरेशन मैंने की। भाई उसने तो शादी नहीं की, उसका तो बेटा नहीं है। ध्यान किधर है तुम्हारा? पिज़्ज़े की तरफ जी, पिज़्ज़े की। आपको पता है मीरा की जो शादी हुई थी, मीरा की शादी, उसकी टोटल डेकोरेशन मैंने की मैम। मीरा की तो शादी ही नहीं हुई। और मैम आपको नहीं पता, कोल्ड ड्रिंक पी लें पिज़्ज़े के ऊपर से पीते हैं। हाँ भाई मुझे पता है, मैं भी उठ के पीती हूँ। आपने पीनी है? पहले भी मैं तो कलफ कह के फंस गया सी। जी मैम पीनी है मैंने। अच्छा लाती हूँ मैं भी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। आप मुझे बताएं कि इस घर को डिकोर करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मैम आपको डिकोर करने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा ना, ये वाली दीवार गिरानी पड़ेगी जी। मैम दरअसल टेंट है बहुत बड़े, ठीक है ना, तो आपका घर उस हिसाब से बहुत छोटा सा है। घर में कमरे कितने हैं? 4 नीचे 4 ऊपर। ऊपर वाले गिरा दें। क्या? मैम जब ऊपर वाले कमरे गिरेंगे तो आपका घर खुला हो जाएगा, डेकोरेशन होगी, लाइटें लगेंगी, पूरी कैटरिंग होगी, ऊपर ड्रोन कैमरा रिकॉर्ड करेगा और आपको पता है ड्रोन कैमरा काम क्या करेगा? जब आपकी सहेली के घर जाके लाइव दिखाएगा कि उनके घर में क्या हो रहा है, आपकी सहेली सड़ के सुआ हो जाएगी। यस, देखो ना अभी तक तो खुशबू ही नहीं गई। हाँ चाहती तो मैं यही हूँ कि वो सड़ के सुआ हो जाए। अच्छा मेहमान कितने आने हैं? मेहमान तकरीबन कोई 400 होगा। 400 मेहमान? फिर आपको ना इर्द गिर्द की दीवारें भी गिरानी पड़ेंगी। ओ भाई मैंने सालगिरह करनी है, मैंने यहाँ पे क्रिकेट का मैच करवाना है। मैं तो चाहता हूँ इस घर में मैच ही हो। पिज़्ज़ा तो किसी ने पूछते नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैच हो, लोग इर्द गिर्द से पूछ रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ये तो आप ज्यादा कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब है। मैम कहाँ डेकोरेशन करते हैं आप? आपके अंदर मज का दिमाग लगा हुआ है। मैम मज का दिमाग लगा होता तो मैं आपके पिज़्ज़े में मुंह ना मार देता। उस टाइम मेरा दिल कर रहा था लेकिन हाथ से छीनने को दिल नहीं किया। आपने अकेला पिज़्ज़ा खा के ना मेरे साथ बदतमीजी की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सारा खर्चा कितना होगा? मैम आपको आसपास की दीवारें तो गिरानी पड़ेंगी। ये पीछे किसका घर है? SHO साहब का है। बंदे 400 वो भी गिराना पड़ेगा जी। जी मैम, जी मैम। वे तंबुआ जिया तेरे विच कोई अकल मौत है तेनू? मैं अपनी सहेली नू साड़न टुरी हां ते तू इत्थे मेरा पूरा घर साड़न आ गया। कैसा मौत दे खूह वर्गा तेरा मुंह है। चंगी भली विच मोटरसाइकिल चल सकदी है, बल्कि मोटरसाइकिल नहीं तेरे मुंह दे विच ते कार चल सकदी है। मेरे मुंह च कार चल सकदी? कार छड़ तेरे मुंह दे उत्ते ते ट्राला चल सकदा है। बल्कि सारियां गल्लां नू छड़ मैं ते सोच रही हां अपनी सालगिरह दा फंक्शन तेरे मुंह दे विच रखां। तेरा इंज करके मुंह खोलना, इधर दे दंद बाहर कड्डा, इधर दे भी बाहर कड्डा, तेरी ज़बान खिंच के करा बाहर, इधर दी तेरी दाढ़ां ते बैठ मेहमान,
ਇਧਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੂਫੇ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਲਿਖਾ ਵਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਮਹਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜੇ ਨਾ ਸੁੱਜੇ, तेरा मुंह सज जाएगा। जाहिल जा, चल निकले तू। बस बाजी 150-200 बदवा तू मैंने देती, ओ पता नहीं तेरी लगनी है कि नहीं लगनी। आज तक मेरे सामने जिन्हें पिज्जा खादा ना उन्हें पछिया नहीं हूं कदी। कैसा कूड़े चुकन वाला ट्रक हुंदा है। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि खानदान हो, कबीला या बरादरी, एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो 90% लड़ाइयों का बायस बनता है, लेकिन बिल आखिर सोशल मीडिया पे अपने हर प्लेटफॉर्म पे स्टेटस लगाता है कि इत्तेफाक में बरकत है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।